welcome to Unani Chashma. Our next topic is respiratory system. Respiratory system क्या है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीथिंग एंड द गैस एक्सचेंज. जो हमारी बॉडी में ब्रीथिंग मूवमेंट हो रहा है वो कौन कंट्रोल करता है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और इट सप्लाइज द ऑक्सीजन टू द बॉडी. पूरी बॉडी को ये ऑक्सीजन देता है एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ द मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनटू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द लोअर रेस्पिरेटरी. यानी हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे बट वी डिवाइड फॉर आवर ईज to learn to study into the upper and lower. ठीक है. upper respiratory tract what it includes? It includes the nose, the nasal cavity, the pharynx, the larynx, right? And starting from here we have the lower respiratory tract, that is LRT. ठीक है. lower respiratory tract, and these three portions they come under the upper respiratory tract. Okay, now we will see all the parts. See, nose and nasal cavity. Everyone know this is the nose and this is the nasal cavity, right? What it do? What are the function of this part? What are the functions? They filter the air, warms the air. Whatever air you are taking, it moistens the air. It helps in smell, right? So the structures involved, they are the nostrils, they are the nasal septum, and they are the nasal concave. Basically we will learn all in ENT, but here what the function is of nose is, right? upper respiratory tract. Now coming to the pharynx. Pharynx is the throat that is behind. See, pharynx is the throat that is the behind the nose and mouth. This part is the pharynx, right? Pharynx again, based on the position we divide. The part which lies in the nose, we say it nasopharynx. The part which lie behind the mouth, we say the oropharynx, and the which laryngopharynx. So basically on the division, on this position we divide. So this is the pharynx, and the pharynx is just a passage for air also and for food also. See, this is the pharynx. Now coming to the larynx. What is larynx? Larynx is the voice box. ठीक है, जिससे आपकी आवाज़ आती है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द pharynx एंड द trachea. See, this is the trachea, this is the pharynx. So it is located in between. Can you appreciate this portion is the larynx. larynx क्या करता है? It produces the sound. Very important. इसीलिए larynx को क्या बोलते हैं? Sound box बोलते हैं. It keep the airways clean. It prevents the food entering the airway. ठीक है. ट्रैकिया है और ये इट प्रिवेंट्स द फूड, जो आपका फूड ना जाए इनटू द एयरवेज, उसको प्रिवेंट करता है. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर? सी, वन पार्ट यू नो, एवरीबडी नो, एपिग्लॉटिस. यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस होता है, ये कवर करता है एयरवे को. जब आप स्वेलो, जब आप कुछ खा रहे हैं, कुछ निगल रहे हैं, एट दैट टाइम वो उसको विंड पाइप को, जो एयर पाइप है, उसको एयरवेज को कवर कर देता है. कमिंग टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें जो है सुपरफिशियल सी ट्रैकिया. ट्रैकिया इज कॉल्ड द विंड पाइप. जिस तरह लैरिंग्स को जो है वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं. इट इज़ जस्ट ए ट्यूब कैरिंग एयर टू द लंग्स. ठीक है. दिस if you have seen the tube, see this tube which is having the rings on it, that is called the trachea. और ये see, this is supported by the C shape cartilage ring. What are these rings? ये रिंग क्या होती है? ये कार्टिलेज होता है, C shape के कार्टिलेज होते हैं. ठीक है. इट इज़ लाइंड विद सिलिएटेड म्यूकोसा. वी विल लर्न लेटर. तो ये क्या करता है? कीप द एयरवेज ओपन और रिमूव द डस्ट पार्टिकल. अगेन इसका भी वर्क यही है. नाउ कमिंग टू द ब्रोंकाई. सी, दिस इज द ट्रेकिया. ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू द ब्रोंकाई. ब्रोंकाई दो होते हैं, राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस. अगेन ब्रोंकस आर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स later make the alveolar duct and alveoli. This is the branching patterns, but here we see the right, left and जो आपके लंग्स में जाता है. राइट लंग में जो जाएगा वो राइट मेन ब्रोंकस होगा, जो लेफ्ट लंग में जाएगा वो आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस होगा. ठीक है. कमिंग टू द ब्रोंक्यूल. ब्रोंक्यूल जो है वो स्मॉल एयर पैसेज है इनसाइड द लंग्स, आपके पूरे लंग्स में होते हैं. और देन कमिंग टू द एल्वियोलाई. ये आपके जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब एल्वियोलाई है. और ये टीनी एयर सेक्स होते हैं, जहाँ आपकी गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है.
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड को लीव्स करती है। नाउ लास्ट पार्ट इज़ द लंग। लंग में जो है 2 स्पॉन्जी ऑर्गन, एवरीवन नो दीज आर द लंग्स, सबको पता है ये लंग होते हैं, ठीक है, दोनों साइड के लंग है। और सी दीज आर द लंग्स। और लंग में जो है आपका जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और जो आपका लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। और लेफ्ट लंग जो है आप कार्डियक नोच भी होती है हार्ट के लिए, तो आप हार्ट से पहचान सकते हैं लेफ्ट लंग कौन सा है, वहाँ पे आपके 2 लोब होते हैं। कवरिंग जो इसको लंग को पूरा कवर करती है डेट इज़ द डबल लेयर प्लूरा, इट इज़ कॉल्ड द प्लूरा। सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ रेस्पिरेटरी मसल्स वी विल सी लेटर, डायफ्राम होता है और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ये सब जो होता है, इंटरकॉस्टल मसल, ये सब हम बाद में। तो पाथवे ऑफ एयर सबको समझ आया होगा, द एयर एंटर्स थ्रू द नोज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, राइट। दिस इज द एयरवे का पूरा फ्लो कैसे होता है। कमिंग टू फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी, फंक्शंस क्या होते हैं। द मेन फंक्शन एवरीवन नो दैट इज ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज, oxygen supply, carbon dioxide removal, this is what we call breathing. Then voice production, क्योंकि आपका larynx भी इसी में है, smell, nose भी इसी में है, और maintaining the blood pH, ठीक है, we will see later. राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, और एल्वियोलाई दे आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जो मेन पार्ट है जहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा है दैट इज़ द एल्वियोलाई. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. द नेक्स्ट सिस्टम विच वी विल सी विल बी द डाइजेस्टिव सिस्टम. Okay,